Hello everyone, this is Amit Sharma and today we will discuss the topic of mathematics decimals. Welcome all of you on the intro 0 to hero. My dear students, before discussing the topic, we will discuss on the basics of decimals. What is decimal? What is a decimal number? Which type of numbers are decimal numbers? On all the parts of numbers we are going to discuss today. So my dear students, as I already I have already written on the whiteboard that decimals. Definition of decimal. What is decimals? The number expressed in decimal forms are called decimal number. Means प्यारे बच्चों, मीनिंग क्या हुआ इस बात का? डेसिमल्स होते क्या हैं और जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जिन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है उन नंबर्स को बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। आइए जानते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल लिखता हूँ बच्चों, मैं जैसे लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 1.23। अब देखो ये एक डेसिमल नंबर है, हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा, इस वाले पार्ट को, इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा इसको तो हमने बोल दिया होल नंबर। ये जो नंबर होगा ये होल नंबर होगा। इसका जो होल नंबर और जो डेसिमल पार्ट होता है उसके बीच में जो आता है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को एक डॉट से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए dot. It is called decimal point, and this is the part, decimal part. This is decimal part. So now you can say that a decimal number or a decimal can be divided into 2 parts. First part is whole number and the second part is decimal part. Decimal part comes after the decimal point and a whole number comes before the decimal point. So now you can write so many decimals. Listen and see these examples. If I write 7.213, so you can say here that 7 is a whole number. 7 is a whole number. And how many digits after decimal? So your answer is that 3 digits after decimal. So we can say now that decimal places, these are called decimal places. So there are 3 digits after the decimal point. And in this example, next one, if I write 8.0113, how many digits after decimal? So your answer is there are 4 digits after decimal. So these are decimal places. Now keep in mind one thing, that if I write a number, if I write 2.3, so always keep in mind one thing. प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, एक डेसिमल लिख रहे हैं हम, एक डेसिमल नंबर जब लिखा जा रहा है तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो आने वाला डिजिट है या फिर जो आने वाले डिजिट हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद हो सकता है 1 डिजिट हो और मोर देन 1 डिजिट हो, तो हम डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स के बाद हम
जीरो लगा सकते हैं, हम जीरो लगा सकते हैं। हम अगर इस नंबर को, इफ आई राइट दिस नंबर 2.3 इज इक्वल्स टू 2.30 इज इक्वल्स टू 2.300। all the numbers are equal, all the decimals are equal. So keep in mind one thing, that after decimal one or more than one digit come, we can put as many digits as we want. So it was the decimal. I think you have got it very well that what is decimal. Now let's move to the decimal places. I think you have got it very well that what is decimal places, and through examples we can understand now what is decimal places. Then the definition of decimal places: the number of digits contained in the decimal part of a decimal gives the number of decimal places. प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग क्या हुआ? The number of digits contained in the decimal, कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे डेसिमल में, पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 6.13, सो इसमें डेसिमल्स कितने हैं? इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स। So how many decimal places? 2 decimal places. अगर मैं इसमें बात करूं प्यारे बच्चों 7.123, so how many decimal places in this? So we can say there are 3 digits after decimal. So our answer is that there are 3 decimal places. So how many decimal places in this number? So 3 decimal places in this number. Now by next example, this is 10.215. This is 10.215. So as all of you know that this is the whole number. This is decimal point. This is decimal point, and after decimal point all the digits are called decimal places. So if I write 10.2153, always keep in mind one thing, that after decimal we always speak one digit. But why? Because we cannot determine the place of the number. That is why we always speak the digit one by one. The method of speaking this number, that 10.2153, this number 6.13, and this number 7.123. So about decimal places you have got it, that how many decimal places in this number? Your answer is 2. How many decimal places in this number? Your answer is 3. And how many decimal places in this number? Your answer is 4. Because after a decimal point there are 4 digits. So our answer is that the 4 decimal places in this number. So now next move to the next point, that is like decimals. What is like decimals? As it can be understood by its name, that like decimals having the same number of decimal places. प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग क्या हुआ कि लाइक डेसिमल्स किन्हें बोलेंगे? इसमें बोल रहा है अगर किसी नंबर में सेम, जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूँ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको बच्चों।
अगर मैं लिखता हूँ 2.13, so please tell me how many digits after the decimal point. Your answer is 2. And if I write next number, this is 5.96. So tell me in this number how many digits are there after decimal points. So your answer is there are 2 digits after decimal. So you can say here after decimal points there are 2 digits, and in this number there are 2 digits after a decimal point. So these types of numbers are called like decimals. If I write these two numbers are like decimals. If I write next example, if I write 2.135 and the next one is 4.219. 2.135 and 4.219. These numbers are like decimals because after decimal point there are 3 digits in number, and in this number after decimal point there are 3 digits. So we can say that these numbers are like decimals. So my dear students, you can understand. प्यारे बच्चों, मतलब ये हुआ अगर डेसिमल के बाद में अगर किसी नंबर में 2 डिजिट हैं, इफ देयर आर 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, और दूसरे नंबर में भी 2 ही डिजिट है डेसिमल के बाद, तो ऐसा नंबर कहलाएगा, ऐसे नंबर को बोलेंगे हम लाइक डेसिमल्स। 2 हैं 3 हैं मीन्स डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो इक्वल हैं दोनों नंबर्स में, तो वो दोनों नंबर्स कहलाएंगे लाइक डेसिमल्स। और प्यारे बच्चों, ठीक इसका उल्टा होता है अनलाइक डेसिमल्स। सो अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है प्यारे बच्चों? मीनिंग क्या हुआ? लाइक डेसिमल्स में तो क्या होता था, डेसिमल्स के बाद में क्या हो रहा था, जो नंबर ऑफ डिजिट्स थे वो इक्वल थे, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं होंगे। आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो हम लिखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा, ये एग्जाम्पल ही लिखा बच्चों 2.13, और मैं इसके साथ एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ 2.135। प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? तो आपका आंसर होगा सर 2 डिजिट हैं इसमें तो डेसिमल के बाद में। और बच्चों, इस वाले नंबर में, ये जो दूसरा वाला नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं? तो आपका आंसर आया बच्चों सर इसमें 3 डिजिट हैं। तो अलग अलग डेसिमल प्लेसेज मीन्स इसमें तो डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे बच्चों? ऐसे नंबर को बोलेंगे अनलाइक डेसिमल। तो आप क्या समझे इस बात से कि लाइक डेसिमल वो होता है जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होते हैं, और अनलाइक डेसिमल प्यारे बच्चों क्या होता है? अनलाइक डेसिमल वो नंबर होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल नहीं होते हैं। तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी बातें थी। अब हम बात करेंगे अगली बात पे। प्यारे बच्चों, अभी तक हम जान चुके हैं कि लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या था। लाइक डेसिमल्स वो था जिसमें डेसिमल प्लेसेज इक्वल थे, और अनलाइक डेसिमल्स वो था जिसमें जो हमारे डेसिमल प्लेसेज थे वो इक्वल नहीं थे। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ जो डिजिट्स थे वो लाइक डेसिमल्स में तो इक्वल थे और अनलाइक डेसिमल्स में इक्वल नहीं थे। अब आइए बच्चों बात करते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग डेसिमल्स कि कैसे पता करेंगे कि कौन सा डेसिमल जो नंबर है, कौन सा डेसिमल है वो बड़ा है और कौन सा डेसिमल छोटा है। तो आइए, हमने फर्स्ट में जब स्टार्ट किया था डेसिमल को,
तो आपको छोटी सी बात बताइए कि जो डेसिमल नंबर होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने लिखा प्यारे बच्चों इसमें 2.32। हमने क्या किया था इसमें, हमने किया था ये तो होल नंबर था और ये था डेसिमल पॉइंट, और ये वाला था जो क्या था प्यारे बच्चों, डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो था वो डेसिमल प्लेसेस थे, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में आने वाले जो डिजिट्स थे। ठीक है, अब हमें अगर कंपेयर करना है किसी नंबर से, अगर मैं लिख रहा हूँ कि ये भी है 2.3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो इनको कंपेयर हमें कैसे करना है बच्चों। आइए सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होगी, हमारा जो लेफ्ट हैंड मीन्स होल नंबर से स्टार्ट करेंगे हम कंपेयर करना। अगर मैंने इस नंबर को लिया और इस नंबर को लिया, पहले मैं इस नंबर के साथ बच्चों कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ 3.21, तो मुझे एक बात बताओ, 2.32 है और ये 3.21, कंपेयर करेंगे हम। स्टार्ट हमेशा होल नंबर से करेंगे, होल नंबर इसमें इन दोनों में कंपेयर करेंगे। होल नंबर किसमें बड़ा है, होल नंबर इसका होल नंबर छोटा है, इसका होल नंबर बड़ा है, मतलब इसका होल नंबर 3 है तो 3.21 क्या हो जाएगा, इक्वल। सबसे पहले होल नंबर पे ही हमें कंपेयर करना है। अगर होल नंबर में ही अगर कोई नंबर बड़ा आ रहा है तो वो डेसिमल भी बड़ा हो जाएगा। अगर मान लो होल नंबर में बड़ा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं बच्चों। एक हमारा नंबर है 2.32 एंड द सेकंड वन इज 2.31। अब बात क्या हुई, अब बात ये हुई बच्चों कि इसमें भी होल नंबर 2 है, इसमें भी होल नंबर 2 है। तो जब होल नंबर सेम आ रहे हों तो हमें इसका टेंस जो प्लेस होगा, मीन्स डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट होगा उसको कंपेयर करना है। अब डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है उसमें भी हमारा क्या है, ये डिजिट भी सेम है, तो ये डिजिट भी सेम है, तो हमें और आगे कंपेयर करने की ज़रूरत है इसमें। अब आते हैं इस पे, ये हमारा 2 है इधर और इधर हमारा क्या है 1, और अब हमें पता करना है 2 और 1 में से बड़ा कौन होगा, तो हमें पता है 2 और 1 में से बड़ा होगा 2, इसलिए हमारा जो नंबर बड़ा हो जाएगा वो 2.32 बड़ा हो जाएगा। आइए बच्चों एक और एग्जांपल से समझते हैं ये बात क्या थी। जैसे मैंने लिया 7.53 और मैंने इसमें लिया नंबर 7.67। मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसमें हमने क्या देखा कि होल नंबर इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो हमें होल नंबर को हम स्किप कर देंगे। अब हमें देखना है डेसिमल के बाद वाले नंबर पे, तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है, जो डिजिट है, वो इसमें तो 5 है और इसमें 6 है, तो अब हमें कंपेयर करके बता रहे होंगे। नाउ वी नीड टू कंपेयर टेंथ प्लेस ऑफ दिस नंबर एंड दैट इज this number, the 10th place of this number is 5 and the 10th place of this number is 6. So we can say here that 6 is greater than 5. So in that case 7.67 is greater than 7.53. So step by step we can compare a decimal. Now let's move to the next example. If I write this is 10.931 and the next one is 10.935. So we need to compare first of all the whole number, and the whole number is same in both of the numbers, 10, that is 10. And now we need to compare after decimal point which number comes, this is 9 and this is 9. Next this is 3 and it is also 3. This is 1 and this is 5. From here we can compare that from this part, means 10.93
and in this number 10.93, these are equal parts of these number, so we need to compare the last digit, means this is 1 and this is 5. So 5 and 1, from 5 and 1 which number is greater? Your answer is 5 is greater. So which number is greater? 10.935 is greater than 10.931. My dear students, now let's move to the important thing. This is 2.30 and this is 2.3. So tell me which number is greater. So always keep in mind one thing. After a decimal point, when one or more digit comes, we can put as many zeros as we want. हमने प्यारे बच्चों एक बात बताई थी आपको कि डेसिमल पॉइंट के बाद में चाहे हम चाहें जो डिजिट आ रहे हों उनके बाद हम जितने जीरो चाहें उतने जीरो पुट कर सकते हैं। हम यहाँ जानेंगे अगर 2.30 और ये 2.3, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो प्यारे बच्चों ये दोनों ही नंबर इक्वल होंगे, क्योंकि मैं 2.3 को मैं 2.30 लिख सकता हूँ और ये तो 2.30 है ही, तो ये दोनों नंबर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, तो अब आप बताओ चलो मुझे कि 5.10 और 5.100 में से बड़ा कौन होगा? बताइए। तो आपका आंसर क्या आया? सर ये तो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स के बाद हम चाहे जितने जीरो लगा सकते हैं, तो हम इसको भी तो सर ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ जी, इसे भी ऐसे लिखा जा सकता है। देन इट इज 5.100. So these are equal numbers. So keep in mind this important thing कि क्या है ये, कि अगर कभी आपको इस टाइप से नंबर दिखें कि आपको यहाँ पे जैसे दिखा होल नंबर और डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाला नंबर सेम हो और एक नंबर के बाद चाहे जितने भी जीरो हों, जैसे मैं लिख रहा हूँ 2.1 और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2.1000000 और चाहे जितने भी जीरो लगा दूँ, तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये 2.1 ही रहेगा। ये 2.1 इक्वल होगा इस 2.1 के ही, तो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। ये था कंपेयरिंग ऑफ decimals. Now let's move to the method of converting a decimal into a fraction. कि कैसे हम एक डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए हमें कोई डेसिमल नंबर गिवन है, जैसे हमें मान लो ये दिया हुआ है 0.2 और हमें कन्वर्ट करना है इसको किस में? हमें इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो हम क्या कर रहे होंगे बच्चों, 0.2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2/1। और अगर मैं इसको, हमने फ्रैक्शन जब पढ़ा था तो हमने उसमें एक बात सीखी थी कि हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें चाहे डिवाइड कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से, और यहाँ नीचे भी मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे ना करूँ, दोनों जगह मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। 0.2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 2 से करूँगा तो 10 2 जा 20, और डेसिमल कितने नंबर के बाद लगा हुआ है? 1 डिजिट के बाद। सॉरी, कितने डिजिट के बाद लगा है डेसिमल? 1 डिजिट के बाद। और डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगाओगे तो 2.0 आएगा। ये कितना आएगा? 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 2.0 को हमने एक बात सीखी थी ना अभी ऊपर कि 2 पर किसी नंबर के बाद जो पॉइंट आता है उसके बाद जो डिजिट आते हैं
चाहे जितनी जीरो लगा दो, उन जीरोज की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी डिजिट के बीच में जीरो आए तो उसकी अलग वैल्यू होती है। ये अगर 0.23 है और ये बच्चों है 2.03 है और ये 2.30 है। अगर इसमें से पूछे कौन सा नंबर बड़ा है तो वही हमने ऊपर मेथड बताया था, कंपेयरिंग डेसिमल। पहले होल नंबर को कंपेयर करेंगे, ये इक्वल है, फिर इसका जो टेंस है प्लेस उसको कंपेयर करेंगे, ये है, तो इसको कंपेयर किया, यहाँ 0 यहाँ 3, तो ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो अब हम इस बात में देख चुके हैं कि 2.0 को मैं लिख सकता हूँ 2 और इसको मैं लिखूंगा 10। नाउ वी नीड टू कैंसिल because there is a common factor in 2 and 10, that is 2. 2 1 is 2 and 2 5 is 10. So the answer is 1/5. So we can convert a decimal number into a fraction by this method. If I write 0.25, it was the by method. बच्चों हम क्या कर रहे थे कि 0.25 है, ये तो समझाने के लिए था आपको। अब हम बहुत फास्ट कर सकते हैं कन्वर्ट इसको। आप देखिए, अगर ये हमें ये देखना है कि इसमें डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं, तो इसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2, तो इसको मैं एक बिना डेसिमल के लिखूंगा। बिना डेसिमल के लिखूंगा तो मैंने लिख दिया 25 और यहाँ पे 1 लगा के और डेसिमल के बाद में कितने डिजिट थे 1 2, तो उतनी 0 लगा दूंगा। तो क्या किया बच्चों हमने, यहाँ पे एक डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो आपको पता लगा कि 10 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पता लगा आपको कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, देयर आर 2 डिजिट after decimal, so we need to multiply by 100 in this decimal, and in this decimal, to convert a decimal number into a fraction number, we need to multiply by 10. When after decimal there are 3 digits, we need to multiply by 1000 and so on. So we can convert any decimal into a fraction by dividing 10, 100, 1000, 10,000, etc. Now we can cancel 25 and 25 and 25 for 100. This is 1/4. So this is the fraction. Now this is, if I write 0.37 and we are going to convert this number into a fraction, so we need to write numerator without decimal, that is 37, and after how many digits are there after decimal, then your answer is there are 2 digits. If there are 2 digits, if I write 3 digits, then I write 375. So now here you need to divide this number by, there are 3 digits after decimal, so you need to divide by 1000. So you can convert any decimal by dividing 10, 100 and 1000 and so on. Okay. Thank you very much my dear student. I hope you are learning at your home, you are studying, keep learning, and if you have any doubt you can write in comment box. Your doubt will be analyzed by me and you can send your doubt to me. Write in comment box how's the video, how's your idea about this video, and write in comment box how are you feeling after watching this video. Thank you very much. Thanks for watching the video.
Keep learning, keep studying, stay home, stay safe. Take care you and your family. Thank you very much.